Okay, good morning, my dear Monica. Welcome to Dil Diya Galla. It's been a गुड few weeks. मॉर्निंग जी। How are you? Good morning. आपके तो good evening हो गई है वैसे, but हाँ, हम बोलते हैं ना ब्रिटिश रूल में I यूके know, में कभी शाम नहीं होती थी, सूरज नहीं डूबता था। तो I know. मोनिका भी सूरज नहीं डूबना देखना चाहती। अभी आपका morning ही चल रहा है. Morning ही समझो. So मॉर्निंग yeah, समझो। morning ही चल रहा है. तो it's good to see you after a couple of weeks. बड़ा अच्छा लग रहा है आपको मिलके and आपके साथ different topics करते हैं health के ladies के health के बारे में. And it's a good thing because you give a lot of information to a lot of ladies. And मैं आपका देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम में भी और आप काफ़ी लोगों को हेल्थ के बारे में काफ़ी बताते हो. So good morning थैंक्स friends. अ लॉट। That's very nice of you to do that. Good morning Kamlesh ji. Good morning Rama ji. Welcome. And like I said, last time हमने काफ़ी cover किया था. I think it was about thyroid. We spoke about thyroid, and then before that it was all about diabetes because a इट very वाज दैट। was, and also a little bit about the diet and uski bhi baat humne kari thi. So today we're going to be discussing a little bit about overall all the health के जो ladies की problem होती है, like issues or the supplements they're taking, whether they're good for them or not, कि natural remedy भी है उस चीज़ के लिए कि नहीं. तो here Monica ji is right here. Welcome Monica, how are you? How's आई everything? एम फाइन, यू टेल, हाउ आर यू वीना जी? मैं भी I'm fine. I just want to say, tell Achura said that before. Thank you for all the friends who have, wished me on my birthday. And last week it was Mother's Day also. So I'm going to wish everybody all the Mother's Day, belated Mother's Day greeting. And my birthday was very good. We celebrated with about 65 या people. आई हैव सीन द पिक्चर्स, इट वाज रियली वेरी नाइस। Yeah, it was really good. We missed all the people who are जो इंडिया में हमारे friends हैं उनको मिस कर रहे हैं कि भी यहाँ पे जहाज लेके इकट्ठा आ जाओ, take a plane and come here. Come, that'd be great. So, like you guys and Rimple and Gautam ji, Himanshi, Rajshri ji, so they're all from India, and Neelam Parwani bhi hai. So all of you are very knowledgeable and very, I would say very nice and good to deal with. I enjoy your company. तो आज फिर ये कौन सी सप्लीमेंट्स जो आप अभी कह रहे थे कि एक्चुअली इट हार्म्स योर बॉडी एंड वी ऑल थिंक इज हेल्पिंग अस यू नो There are lots of supplements. Not on actually, problem is that whenever there is a health issue, or especially in women, उनमें देखा जाता है there is always iron deficiency. Yeah, या hemoglobin कम होता है. There is another issue. Vitamin B is less. Mostly, even with more vegetarian people, they are always low in nutrition, and so they end up with different type of pains, weakness, and all these problems, hair fall issues, acne issues. So many things are together whenever there is issue like that. But problem is that we should find solution with our food. आई I एग्री believe, because अब तो the neighbor भी आपको आराम से advice दे देता है, okay, you are feeling like this, take vitamin D. You are feeling like this, तेरी bones weak है, तो कैल्शियम शुरू कर दे. कैल्शियम की मेडिसिन शेल्टॉल फार्मेसी में विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन कहीं भी बिक्री होती है. एंड इट इज अमेज, आई एम रियली अमेज टू सी कि ऐसी मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन में हाउ कैन यू गिव. बच्चों की भी कैल्शियम आ रही है, मदर्स छोटे से बच्चे को 2 टैबलेट मुंह में डाल देती है, ये मीठी है. फर्स्ट फाइंड द सोल्यूशन थ्रू फूड. जब उससे कोई एक फूड का ऐसा नहीं होता कि आपने हम खाते हैं, हम तो दूध भी पीते हैं, हमारे तो फूड में कैल्शियम रहता है, सारा न्यूट्रिशन रहता है, हरी सब्जियां, फिर भी बॉडी में वीकनेस है. मेक श्योर दैट यू आर एडिंग वन पर्टिकुलर फूड ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, देन यू सी द डिफरेंस. बिकॉज एक पालक पनीर है, पालक पनीर तो में सबसे बड़ी बात है, ना पालक में आयरन है ना पनीर में आयरन है. और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पालक में आयरन है. हाँ नहीं है. आई हैव अ बुक, मैं उसकी फोटो खींच कर बता देती हूँ अच्छा जिससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं. पालक में प्रोटीन है. यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा डोज ऑफ प्रोटीन थ्रू पालक पनीर. यू आर नॉट टेकिंग आयरन. और फिर हम बोलते हैं कि मैं तो आयरन ले रही हूँ, क्यों कम है मेरा आयरन. आयरन का पूरा करने के लिए मेक फूड इन, जो लोहे की कढ़ाइयाँ आती थी ना पहले जमाने में, उसमें बनाओ.
मेथी में पालक से कहीं भी ज्यादा आयरन है, उसे किसी भी तरह बॉडी में ले जाओ। जितनी भी हरी दालें हैं उनमें आयरन है, बट मेक श्योर यू आर टेकिंग दिस डेली। मेथी की सब्जी हफ्ते में 2 से 3 बार खा लो। हरी दालें, छिलके वाली दालें रोज खाओ, then you see the difference. But if you are saying that only medicine, medicine भी तो रोज खानी है, इससे अच्छा फूड वो रोज ले लो। सो बुराई नहीं है सप्लीमेंट लेने में, बट ईच एंड एवरी सप्लीमेंट हैज सम लिमिटेड टाइम टू कंज्यूम इन योर बॉडी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सो देयर शुड बी अ लिमिट। और ये कोई डॉक्टर नहीं बताता व्हाट इज द लिमिट ऑफ टेकिंग द सप्लीमेंट्स। मेरे पास एक बार केस आया था, सबसे पहला जब मुझे भी ये चीज की अवेयरनेस हुई थी, that was from Australia, Perth. A client, she joined me because of her husband. उनका प्रॉब्लम थी कैल्सिफिकेशन वॉल अराउंड हिज हार्ट। वो वॉल कैसे बनती है? एक्स्ट्रा डोज ऑफ कैल्शियम। और अच्छे देशों में कैल्शियम की बोतल की छोटी नहीं आती, इतनी बड़ी आती है। ये देखिए, इसे खत्म करना है। और ये कम से कम ये 3 से 4 साल का वो है। अब कितना तो इंसान खा लेगा, खत्म भी करनी है, ये मेडिसिन भी पड़ी हुई है। तो हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। आप एक कैल्शियम की मेडिसिन 15 से 20 दिन लो, उसके बाद गिव योरसेल्फ ब्रेक, अपने फूड में सप्लीमेंट ढूंढो। कैल्शियम हमें, आपको बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि सबसे ज्यादा कैल्शियम आलू में है। आलू में, पोटैटो का कैल्शियम इतना अच्छा है। आपको शायद ध्यान होगा, बहुत से लोग जिनको नी पेन होता है, उनको बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि ये जो उबले हुए आलू के पानी का सेक दो। हाँ, मैंने सुना है ना? तो इससे आप आइडिया लगा लो, वो सेहत से अच्छा है कि उतना आलू आप थोड़ा बहुत खाओ। हर सब्जी में आलू क्यों होता है? वो इसी रीजन से होता है। फ्रेंच बीन्स और आलू की सब्जी बना लो, आलू मेथी बना लो। आलू का जो बच्चों, मैश्ड पोटैटोज हैं, बच्चों के लिए भी है। आलू से वेट नहीं बढ़ता, दिस इज अ मिथ। मिथ। आलू में कार्ब्स होते हैं, बट दोज आर द हेल्दी कार्ब्स, सो दोज आर नॉट। अगर किसी किसी को हु इज डायबिटिक, अगर डायबिटिक है कोई, तो उसमें भी इज इट ओके टू ईट हाँ, रेगुलर कोई पोटैटो? डायबिटिक जो होता है, उसे कोई भी चीज पूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो है। उसे कोई चीज पूरा छोड़ना है। डायबिटिक पर्सन अपना रोज का थोड़ा बहुत चने की दाल, भुना चना, बेसन, ये सब ले। और और देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड इज ऑलवेज हेल्दी। थोड़ा उसका कोई भी सब्जी बनाए, जैसे मैंने बोला फ्रेंच बीन्स, आलू, आलू मेथी, इस तरह से अपनी सब्जी हो। और डायबिटिक पेशेंट दही से भी कैल्शियम ले सकता है, और अंडे का जो यॉक होता है उसमें भी कैल्शियम होता है। तो बहुत सी चीजें हैं जो, पर वो आदत होनी चाहिए कि वो रूटीन में खाना है। ये नहीं यस। कि मेरे घर में बस वीकेंड्स में अंडे बने, अदरवाइज हमारे घर में स्मेल आएगी। तो ये मैं तो वो आई नो। जब आपको पता चल जाए ये प्रॉब्लम, मैं मैक्सिमम जो रिजल्ट है ना वो डाइट से ही देती हूँ। डाइट इज अ बैड, देखो सब कुछ अवेलेबल है। व्हाई टू टेक दिस सप्लीमेंट्स? अगर जैसे आपने कैल्शियम जब की जब बोली है। मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो डायबिटीज का रिजल्ट मैं डाइट से देती हूँ। लोगों ने इंसुलिन छोड़ा है, मैं मतलब देखा जाए तो डाइट ने मेडिसिन को फेल कर दिया। हम्म। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डाइट कि जस्ट अपने किचन में चीजें देखो। हमारे तो छोटे से छोटे मसाले में भी बेनिफिट। वो तो है, दैट्स ट्रू। हाँ, छोटे जीरा में कितना बेनिफिट है, अजवाइन में कितने बेनिफिट्स हैं। तो हमारे तो मसाले भी बहुत अच्छे हैं। और किसी का पता नहीं, जो प्योर लाल मिर्च है वो भी बहुत अच्छी होती है। लाल मिर्च में भी आई थिंक कैल्शियम होती है, आई थिंक कैल्शियम। कैल्शियम नहीं होती? हाँ, हरी मिर्च में कैल्शियम होता है। हरी मिर्च में होती है। हरी मिर्च में होता है कैल्शियम, बहुत अच्छा कैल्शियम होता है हरी मिर्च में। तो ये और जो, आईसाइट बढ़ाती है। हाँ, यस। हरी इलायची, हरी मिर्च रोज खाओ, चश्मा उतर सकता है। आईसाइट के लिए बहुत अच्छी है, ब्लरनेस को इफेक्ट देती है। हम्म। तो हर चीज का फायदा है, बट वी हैव टू ऐड देम इन रूटीन। सो इट शुड बी इन अ डेली डाइट। इट शुड बी आउट। हरा धनिया जो हम बस सब्जी सजाने के लिए करते हैं, अब देखा जाए उसका जो बेनिफिट है, इट इज फॉर डाइजेशन एज वेल।
राइट हमारी जो इंडियन कुकिंग है ना, उसके पीछे बहुत डीप रीजंस रहे हैं, राइट, बहुत आई डीप एग्री, रीजंस आई रहे हैं। एग्री। ये तो है। जैसे हम देखो खाने के साथ, आई मीन इंडिया में सब करते हैं, यहाँ पे भी आजकल, आई मीन यहाँ पे भी करते हैं, फ्रेश चटनी बनाते हैं, धनिया की, पुदीना की, सालों उसमें से चल रहा है ये सिस्टम। अदरक डाल के, सब कुछ डाल के, दैट्स वेरी हेल्दी एक्चुअली। वेरी एक चमचा हेल्दी। खाने के साथ खा लो, इट्स गुड फॉर डाइजेशन, गुड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स अ वेरी गुड लॉट थिंग, ऑफ। इट्स गुड फॉर एवरीथिंग। उसमें हरी मिर्च भी डालो, उसमें हरी मिर्च भी डलती है, अमचूर डाल लो अमचूर तो डालो, एंड लाइक लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। अदरक डालो, अदरक इज गुड फॉर डाइजेशन, these things are all have good benefits। तो इसका क्या चटनी। बस वो रूटीन होनी चाहिए, नहीं तो ये सप्लीमेंट्स लो। मैं सप्लीमेंट्स से अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि सप्लीमेंट की लिमिट सबको पता होनी बहुत जरूरी है। हम सप्ली अपना इतना अच्छा फूड छोड़कर सप्लीमेंट्स के बेस पर क्यों जी रहे हैं? इससे अच्छा कि हम अपने फूड में आदत डालें वही चीजों में। या जैसे आप कह रहे हो, दालें दालें, कोई कहता है स्टार्च होती है उसमें बहुत। दालें बहुत अच्छी होती है, दालें में विटामिन बी होता है। जो जितनी भी छिलके वाली दालें हैं उनमें विटामिन बी है, आयरन है, प्रोटीन है, सब कुछ ही है दालों में। प्रोटीन में तो हाँ नहीं, पर स्टार्च भी तो है, स्टार्च नहीं, स्टार्च भी तो होती है। स्टार्च स्टार्च नहीं होता है इतना ज्यादा दालों में। स्टार्च होता है जो ब्लैक वाली दाल होती है। अच्छा, ब्लैक वाली जो काली दाल है उसमें। हाँ, जो अच्छा, दाल मखनी, हाँ जी, जिसकी हाँ दाल हाँ मखनी, हाँ, वो। उसमें स्टार्च होता है। And we need starches as well for our bones। हमें स्टार्च जब ये स्वीट पोटैटो लो, उसमें कितना अच्छा कैल्शियम भी है, विटामिन बी से भरा हुआ है स्वीट पोटैटो। आई लाइक स्वीट पोटैटो, आई लाइक हाँ, इट। वो बहुत ही अच्छा, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है स्वीट पोटैटो की। बट दीज आर द अंडररेटेड फूड। स्वीट पोटैटो किसी भी किचन ग्रोसरी में एक रूटीन फूड नहीं है, ना, इट्स ना नॉट। इंडिया में ना इंडिया से बाहर। इंडिया में तो नवरात्रों के व्रत वाले दिन सबके घर में आ हाँ, जाता यहाँ है। पे तो लोग खाते हैं, इनके कुछ इनका वो होता है कुछ, स्वीट डिश भी बनाते हैं उसकी यहाँ पर। अच्छा, स्वीट और पोटैटो की। हाँ, यहाँ पे जैसे डिश होती है, लाइक यू कैन ईट, लाइक आई डोंट नो, बट वेजिटेरियंस तो नहीं खाएंगे, लेकिन आई सम टाइम लाइक टू हैव ए ग्रिल्ड चिकन, अच्छा। ग्रिल्ड चिकन, चिकन का स्वीट पोटैटो या बेक्ड पोटैटो, साथ में सैलड खा लिया या कुछ और कुछ, ग्रिल्ड, ओ। लाइक कैन हैव सम वेजिटेबल्स, यू नो बॉयल कर, लाइक नॉट स्टीम करके खा लो, all these things, instead of the Indian खाने के लिए, I eat that sometime, I eat this many times। समटाइम देयर इज अ चेंज ऑफ फूड ना, अच्छा भी लगता है, थोड़ा चेंज अच्छा लगता है। तो ग्रिल्ड चिकन अच्छा लगता है मुझे, ग्रिल्ड एंड वेजिटेबल्स जो होती हैं ग्रिल्ड करके, उनको थोड़ा put little nimbu and all that, nimbu or pepper or whatever you like, that's very healthy too, just not too much water, grill डेफिनेटली। करके खाओ, and then also sweet potatoes, it's good, or you can have a baked potato also is very, baked potato, jacket potato, it is these are the food, those are healthy। hmm? बस थोड़ा अब अभी टाइम आ गया है कि जितना भी हो सके अपना ऑयल का लेवल नीचे ले आओ। और जो भी फूड बना रहे हैं, नेवर ओवर कुक। हम उसमें अरे सारा उसमें न्यूट्रिशन, हम हम साग अपना बनाते, न्यूट्रिशन हाँ, अपने हाथों से पिक अ, करते हैं। जैसे साग बनाते हैं, जब मक्की की रोटी और साग जो बनाते हैं, करी जा रहे हैं, उसको बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, आई मीन व्हाट इज लेफ्ट, उसको कुछ फिर भी नहीं बचा वो। उसके बाद में मैंने देखा लोगों के घर में उसको मिक्सी में डाल के, उसको बिल्कुल वो मिक्सी में मिक्स करके किया हुआ। खत्म कर आई डोंट देते लाइक हैं। आई डोंट लाइक इट लाइक दैट एट ऑल, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे अच्छा लगता है यू मेक इट एंड देन यू ईट इट द वे इट इज, इट बट इज। और दाल मखनी में भी ऐसे होते हैं, उसे हाँ, धीरे छोड़ देते हैं, तड़का लगता ही जाते हैं। वो बेचारी, वो दाल में इतने हेल्थ बेनिफिट्स है, फुल ऑफ आयरन। आपको पता है, या फुल ऑफ आयरन में राजमा भी है। राजमा तो आज तक हम अच्छे यस, टेस्ट के लिए जानते हैं, बट राजमा इज टू गुड फॉर दिस। चिकपीस बहुत अच्छे हैं। तो फूड तो अपने बहुत अच्छे हैं, पर हम उसे, कुछ फूड को हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि मेरी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते। बहुत सी चीजें हो जाती है जो लोग फूड को छोड़ते जा रहे हैं। ये तो है, then that's the problem, because they don't want to cook, तो कहते सप्लीमेंट ही खा लो, चलो यही खा लो, यही खा लो, ये। सप्लीमेंट खा लो, फूड से मुझे हजम भी नहीं होना, क्योंकि बॉडी यूज टू नहीं रहती बहुत सी चीजों के साथ साथ। ये तो है। गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैव जॉइन मी। तो मोनिका जी, जब आप प्रोग्राम शुरू करते हो ना, तो यहाँ टेक्निकल जो आपका जो लड़का जो आपको वर्क्स फॉर यू, टेल हिम टू शेयर ऑन योर टाइम लाइन,
अभी अभी मैंने जैसे मेरा प्रोग्राम अभी मेरे टाइमलाइन में हो रहा है, अभी मैंने इसको कॉपी करके अपने ग्रुप में डाल दिया है, कॉपी करके अपने पेज में डाल दो, कॉपी करके यू कैन पुट इन इंस्टाग्राम, सो इट विल कम लाइव, यू सी। लेट मी चेक ऑन माय फेस, लेट मी चेक, आप 2 मिनट आप रुकिए हाँ। उसको शेयर करो। तो इवन आई एम टेलिंग ऑल माय फ्रेंड्स हु हैव जॉइंड, कमलेश जी, आशा जी अभी ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। अपर्णा इज हियर टू, वेलकम। एंड सागर जी, आई बिलीव इज इन न्यूयॉर्क राइट नाउ, वेलकम सागर जी। शशि जी, कमलेश जी, रमा जी, एंड लेट मी सी, अनिल जी भी हैं। So I want to, thank you so much Sagar ji for wishing me, and और हाँ बस ये लोग अभी ज्वाइन किया, तो आप अपना शेयर करो रमा जी। सो यू कैन शेयर, एंड शैली जी भी हैं ऑफ कोर्स। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ यू शेयर इट when your timeline, when it's running, when मैं it's भी going, शेयर कर देती हूँ आपके इसे टाइमलाइन अभी में अपने इंस्टाग्राम में सब शेयर कर सकते हो। शेयर टू, And मैंने कर everybody दिया। watching here can also share. सागर जी तो हमेशा when he comes to my program, he always shares on his timeline, हमेशा करते हैं, तो उनके इतने हाँ फॉलोअर्स अभी ये आते हैं। मेरे टाइमलाइन पर भी आ गया है। हाँ, तो उसको शेयर करोगे तो आ जाएगा, तो देन ऑल ऑफ योर फॉलोअर्स, योर पीपल कैन वॉच डायरेक्ट, हाँ वो यू भी नो। देख सकते हैं। नाउ इट इज ऑन माय टाइमलाइन आई थिंक सो हाँ। योर फॉलोअर्स, योर फ्रेंड्स जो भी हैं लाइव, दे कैन ऑल्सो वॉच। सो ये बात है। सो ऑल अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट नाउ लेट्स बी टॉकिंग, वी वर टॉकिंग ओरिजिनली अबाउट, तो ये तो हमने बात करी विटामिन्स की, दिस थिंग, वुमेन्स की हेल्थ की बात कर रहे थे हम, राइट। अब उसकी साउंड बंद कर दो। तो व्हाट हाँ वुमेन्स की, लाइक what do you think is the main thing that they should get themselves checked out? क्या क्या इश्यूज होती है जो इग्नोर करती हैं लेडीज, they do ignore it, some of them। लेडीज सबसे पहले अपने रूटीन, आजकल हर लेडी को स्लिम होने का बहुत इंटरेस्ट है, सबको सबको मीन सबको। तो जब मुझे भी ज्वाइन करते हैं ना तो मुझे मैसेज डालते हैं कि मैं रोटी नहीं खाती, सारी लेडीज, प्लीज डोंट ऐड रोटी इन माई फूड। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि आपको बचपन से आदत नहीं है रोटी की, यू आर नॉट ईटिंग रोटी, अब मतलब यू आर ईटिंग एवरीथिंग, दाल भी खा रही हो, सब्जी भी है, सब है, व्हाई नॉट रोटी? नहीं मैं तो बहुत टाइम से ना पतले होने की ट्राई कर रही हूँ, सो दिस इज द रीजन आई एम नॉट ईटिंग रोटी। मैं कहा अनलेस यू हैव ज्वाइंड मी, यू कैन टेल मी कि आई एम, मुझे मुझे रोटी मत डालना, क्योंकि आपको मेरे डाइट का स्टाइल नहीं पता। मैं तो रोटी डालती हूँ बिकॉज आई डोंट बिलीव कि विदाउट कार्ब्स आपको बैलेंस्ड और न्यूट्रिशन डाइट मिल रही है। यू आर हैविंग प्रोटीन, यू आर हैविंग मिनरल्स, यू आर हैविंग विटामिन, बट कार्ब्स का भी उतना रोल है, फ्रॉम वेयर यू विल गेट द एनर्जी? फिर सारा दिन चिड़चिड़े चिड़चिड़े रहोगे, जब सारा दिन एनर्जी नहीं मिलेगी, हाउ यू विल मैनेज? राइट। मैंने देखा है कि जस्ट बिकॉज एवरीवन वांट्स टू लुक फिट, लोगों में नॉलेज पूरी, जितनी भी नॉलेज है ना वो थोड़ी बहुत सुन ली कि हाँ रोटी वेट बढ़ाती है, बट हाँ वाई, कितनी रोटी वेट बढ़ाती है? 5 रोटी खा रहे हो आप, 6 रोटी, एक रोटी से वेट नहीं बढ़ता। तो सो आई हैव नोटिस्ड। अच्छा दूसरी बात, व्हेन वुमेन आर लैकिंग, मैं फिटनेस की तरफ वाली लेडीज की बात कर रही हूँ सबसे पहले हाँ, they are going to gym daily after dropping their kids to school, daily they are going to gym, but before that what you are having? मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिलता, मैं बस चाय पीती हूँ, मैं बच्चों को छोड़ती हूँ, जिम चली जाती हूँ। हाउ कैन समवन then work out at gym without eating anything? हमारी बॉडी में रिजर्व बहुत न्यूट्रिशन रहता है, एवरीथिंग इज देयर, रिजर्व में आप चले जाओ सब चीजें पड़ी, बट उसके बाद जब आपका रिजर्व का पेट्रोल भी यूज हो गया, देन हाउ यू विल मैनेज दैट? आई नो, दैट फिर इज ट्रू। नो वन हैज दिस मच नॉलेज दैट आफ्टर जिम हमारा फैट बर्न होता है, एज सून दे आर बैक फ्रॉम जिम, जो सामने पड़ा होता है, चाहे वो फ्रूट, उन्हें लगता है वी हैव डन द जिम, वी कैन हैव समथिंग वट एवर इन आवर किचन लाइक देयर, जो भी सामने पड़ा है, सैंडविच भी है, जो भी है, दे आर टेकिंग इमीडिएटली विद इन 10-15 minutes आफ्टर जिम। Even again, here is the lack of knowledge. After the gym, one should let their fat burn. नींबू पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, पानी ज्यादा पी लो, 15 से 20 मिनट बैठो, रेस्ट करो। After that, have after 1 hour after taking shower and have proper nutrition diet, because whatever you have burned in gym, you have to recover it same राइट। time. ओ या। नेक्स्ट डे के लिए भी रेडी होना है। और बिफोर जिम की डाइट, आई शेयर लॉट ऑफ टाइम टू माय क्लाइंट, बहुत से लोगों को बोला है मस्ट हैव 1 बनाना,
It will work like a magic. So before gym, ये सब चीजों के ना पता होने पर भी, then end up with lot of hair fall, acne, skin का glow, so many things started happening, पर weight नहीं जाता. मैंने बहुत लोग, मेरे पास आते ही वो लोग हैं जो जिम से थक चुके होते हैं. वेट तभी जाता है when you keep your metabolism high. Your metabolism high होता है food से. Without food, metabolism high हो ही नहीं सकता. तो आपके दैट्स अ गुड क्वेश्चन यू सेड दैट लेडीज हु गो टू द जिम कुछ खा के नहीं जाती. तो नाउ नेक्स्ट वीक से आई एम गोना बी स्टार्टिंग गोइंग अगेन. आई स्टॉप फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज बीच में कोविड आ गया, ये आ गया, मैं नहीं गई. तो आई एम बिजी इन द प्रोग्राम, बट आई सेड टू माई सेल्फ दैट, मैंने कहा था लास्ट ईयर भी कहा था कि आफ्टर द न्यू ईयर आई विल स्टार्ट गोइंग. नहीं गई, शुरू You नहीं किया. must start gym. एंड देन नाउ दिस ईयर, अभी देखो अभी मिडल ऑफ मई आ गया है, तो अभी नहीं किया. तो अभी आई एम गोना स्टार्ट गोइंग नेक्स्ट वीक से. आई एम गोना, तो आई वांट टू जस्ट जनरल टॉक. कोई जा रहा है जाने से पहले, तो व्हाट इज योर सजेशन दैट दे शुड ईट? बिकॉज यू नो यू कैनॉट ईट एनीथिंग टू हैवी. ताकि अगर एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो इतना हाँ, हैवी लिया. बनाना, 1 बनाना, हाफ एप्पल और पपाया. बनाना में पोटाशियम होता है. इवन यू कैन हैव avocado, उसमें मैग्नीशियम रहता है. वी नीड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बिफोर जिम. राइट, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. तो आप जिम में जाओगे, आपके पास वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप जिम के जाने से आपके पास टाइम हो, तो 1 या 2 घंटे से पहले अगर आपने कुछ अच्छा नाश्ता भी करा हुआ है, दैट इज फाइन. क्योंकि जिम के लिए एनर्जी लेवल अच्छा होना बहुत हाँ जरूरी है. बिल्कुल. डोंट पुश योर बॉडी. ये अभी जितने भी हार्ट अटैक के केसेस आए हैं इन सेलिब्रिटीज, they are taking more protein than carbs, and this is the reason they end up with this type of heart attacks. Don't push your body. हमारी बॉडी में अलार्म फिट है. हमारी बॉडी अपने आप में एक अलार्म है. it gives the sign each and every time जैसे क्या चाहिए. अगर आपको बर्फ खाने को ज्यादा मन हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी. अगर आपको मीठा ज्यादा अच्छा लग रहा है, विटामिन बी इज वेरी लो. इफ यू आर मोर स्लीपी, यू आर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है. फुल टाइम लो एनर्जी, नींद आते जाना, विटामिन डी. हमारी बॉडी हमें सब कुछ बताती है. That's a good sign. आपको that's a good thing to know. तो इस देखो लोगों को, we people don't know all these things कि विटामिन बी, if you're deficient then you want to eat sweet, मीठी चीजें खाने का दिल करता है. बहुत अच्छी लगती है जिनका लो विटामिन बी होता है. आप नोटिस करना, जितने भी आप लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, उनमें विटामिन बी की डेफिशिएंसी होते हैं. तो उनको नहीं मिल पाता अच्छे से डाइट में सारी चीजें. तो उनको जब भी कुछ मन होता है, उनको मीठा ही अच्छा लगता है. हम्म. पर विटामिन बी का सबसे बड़ा इलाज है दालें रोज. दालें खाओ. दालें खाओ अच्छे से. स्वीट दालें पोटैटो बहुत अच्छा है विटामिन बी वालों के लिए. स्वीट पोटैटो, बट रेगुलर पोटैटो भी तो उसका भी तो गुड क्वालिटी. रेगुलर पोटैटो में पोटाशियम है और हाँ. कैल्शियम. ओके, that's good. फास्फोरस भी है. फास्फोरस के लिए तो, फास्फोरस तो वैसे भी कैल्शियम बोन्स को सपोर्ट करता है. एंड ऑल्सो क्या कहा आपने, अभी कहा था कि पीपल हु आर डिफिशिएंट इन कैल्शियम में, तो वो क्या करते हैं फिर? व्हाट दे नीड जो मोर कैल्शियम, सन. मतलब अभी देखो ना, यहाँ पे जैसे अंधेरा है कभी, तो इसी के लिए तो लोग कैल्शियम पिल्स ले रहे हैं, बिकॉज उनको ज्यादा, दैट्स विटामिन डी. कैल्शियम वालों की बॉडी कैसे अलार्म देती है? यू ऑलवेज हैव लिटिल बिट ऑफ पेन इन योर मसल्स, इन्फ्लेमेशन रहती है, सर्वाइकल इशू हो जाता है. ज्यादा देर आप लैपटॉप पर बैठे हो तो बॉडी एकदम अकड़ और जकड़ सी जाती है, जैसे बहुत लंबा ट्रेवल करा हो. तो ये कैल्शियम डेफिशिएंसी वालों का साइन है. सो इट्स गुड टू ईट, बट जैसे आपने बोला दालों में, इवन इंक्लूडिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे आपने बोला साग में भी यू गेट कैल्शियम, राइट? साग में तो बहुत साग अच्छा में तो आयरन है. कैल्शियम मैंने सुना हुआ है. साग ग्रीन, तो फुल ऑफ आयरन है. आयरन एंड कैल्शियम टू, राइट? आयरन है. साग बहुत अच्छा है. साग के तो इवन बेनिफिट ये बहुत जो है. सैलड, दैट्स व्हाई से सैलड खाया करो, सैलड में भी कैल्शियम होती है. आई थिंक यू गेट कैल्शियम. सैलड सारा बहुत अच्छा, डाइजेशन बहुत अच्छा करता है. एपेटाइजर्स होते हैं सैलड्स. यहाँ पे तो सैलड लंच के लिए कभी मेरा दिल करता है तो आई टेक ग्रिल्ड चिकन एंड सैलड, all different type of salad के अंदर all kind of stuff, you know, different cucumbers, हाँ, tomatoes, कुछ भी everything. डाल सकते Have a हैं आप. nice salad and have a grilled chicken or grilled fish, salmon खा लो. So that's a good I would say balanced lunch.
खा लो. It's not too heavy. It's light. Vegetarians के लिए you can substitute that with paneer or tofu भी डाल सकते हो with a nice टोफू, nice अच्छा, salad. टोफू टोफू प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। हाँ, टोफू इज प्लांट बेस्ड प्रोटीन। वेजिटेरियंस के वो लिए पनीर भी है. जो वीगन्स होते हैं, इट्स फॉर देम, उनके लिए प्रोटीन है ये सोया टोफू, इट Yeah, इज फॉर वीगन्स। right. So that's they have their choice too. So a lot of दे people, हैव द चॉइस। yeah, they have vegans and they need, so they can substitute the fish or chicken with that, with the paneer. दे कैन सब्स्टिट्यूट Very, विद दिस। very healthy. हाँ. Someone just asked for osteoporosis or osteopenia की question कर रहे हैं. मैंने देखा नहीं. Let me see somebody. Anybody has any questions? Please let me. I can ask. Monica ji, she's right here. Osteopenia, and that is, I think, osteoporosis is due to lack of calcium. डेफिनेटली। Yeah. Osteoporosis. That also. देखो यहाँ पे भी every couple of years they check your body for that deficiency. अगर उसमें से ये होता है, दिस इज या आपके वहां तो प्रॉपर जो चेकअप डांस होता है. सब चीजों का दे बोन डेंसिटी कहते हैं ना उसको, बोन डेंसिटी का चेकअप. हाँ, यहाँ पे होता है. Yeah, they have a checkup for that every few years to see how the bones are. Sometimes bones जो होती हैं when with the age they start shrinking, you know. The bones start, even the height अभी goes. अभी ये बोन्स का कोई भी चीज बस एज के साथ नहीं रह गया था। ये पीपल आर ईटिंग नाउअडेज, बोन की डेफिशिएंसी, बोन्स में प्रॉब्लम आने का 30 की एज से शुरू हो गया है। Oh, जैसे अभी आशा जी कह रही हैं, आई एग्री विद यू आशा जी, क्योंकि there was a time when I was taking a lot of soya milk, सोया का, और ये टोफू वगैरह मैं खा रही थी because I like tofu. मैं कहा पनीर के बदले तो टोफू खा लो. But then when I went for my mammogram के लिए, because you have to go 1 year every 2 years जो भी है, उसमें मेरे को problem, they said no, we see something, you have to come back every 3 months. Every 3 months आओ. तो I was taking the soy milk again and again, और मैं soy milk पी रही हूँ. Then somehow I got a dietitian जैसे आप हैं. मेरे को भी मेरी medical company ने उन्होंने कहा भी we have a dietitian on stand, you can call and ask any question, you make an appointment and they will answer any questions, you know. So I said okay. So they said what are you taking in your diet, what kind of milk are you taking? I don't like regular milk, okay, मुझे उससे gas होती है, I don't, it doesn't suit me, so I'm taking soy. And then they said no, tofu खा रहे हो, ये कहते stop taking that, start taking almond milk, that's much better for you, That is much better. much better. तो उससे करने से then when I went next time for my mammogram, I didn't have to go every 3 months, कहते every 3 months you have to come. उसके बाद में उन्होंने 6 months किया. After that when I stopped it totally, now I'm 100% back to normal, I have no problem at all. So I just go once a year. But what I'm saying is these things affect your body. Too much tofu and too much soya, Definitely. If not you good. are eating something that is not good for your health, उससे उसी टाइम समझ लो और छोड़ दो। And बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डेली रूटीन में, जैसे पालक है, इसे आप रोज खाओगे, देयर आर द चांसेस कि बॉडी में आपके ये जो स्टोन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो टमाटर के छिलका, हमारे फूड में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट अब हमारी जो कुकिंग है ना, वो हमेशा नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, समझने वाली बात होनी चाहिए कि हम कितनी चीज कितनी ज्यादा ले सकते हैं। आशा जी कह रही हैं she makes her own almond milk. Good for you. आशा जी मेरे पास तो टाइम नहीं होता करने के लिए सब कुछ, लेकिन I know this हाँ, not that. आलमंड मिल्क वैसे बहुत जल्दी बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्या है इसकी, क्या बताओ जरा, क्या रेसिपी है, कैसे बनाते हो उसको? सोक करते हो आलमंड्स को, सोक करके सो के हाँ जी, उनका छिलका निकाल लो, and then तो grind यू कैन जस्ट ग्राइंड विद वाटर, and that's it. वेरी सिंपल। वैसे इसकी मशीन भी आती है, हाँ, मशीन भी आती है, यस. इसकी मशीन भी आती है, इंडिया में ज्यादा नहीं कॉमन है, इसकी मशीन पर आती है। आजकल ओट मिल्क भी मिलता है, कोकोनट का भी मिलता है. सो हाँ, people get confused with क्या कोकोनट मिल्क, you know. So all this things, a lot of things are going on right now. People, if they don't want to take the regular milk because they get that, they have to take a special different type of milk अगर आपको stomach में affect कर रहा तो. So these things, some of the milks also you have to be very, you know, regular milk. तो यहाँ पे तो देखो ना, छोटे बच्चे होते हैं,
small children. Even for them, after 1 or 2 years के बाद वो कहते हैं मिल्क देना बंद कर दो. अच्छी बात है। आपको पता है ये मिल्क के बारे में तो लोगों की साइंस बहुत पुअर, उन्हें आइडिया नहीं है कि दिस मिल्क एक्चुअली क्या है। ह्यूमन का मिल्क ह्यूमन ही पीता है। वाई वी आर टेकिंग काउज और बफेलोज मिल्क। And आपको पता ही है cows को all over the world, but they're feeding them all kind of stuff to make them look big. Hormones दे रहे हैं ना, एंड hormones दे रहे उनके हैं. हार्मोन, एंड हाँ, दिस इज द वो रीजन hormones बच्चे कितना बच्चों को देंगे. अग्रेशन बढ़ रहा है। या हम लोगों में भी वैसे ही अग्रेशन आ रहा है। आप देखो जो वो चीज इतने दुख से दे रही है, शी इज नॉट लिविंग इट हैप्पीली ऑल द टाइम। उसके बछड़े को साइड पर करके इंजेक्शन, सब तो इंजेक्शन से मिल रहा है, सब चीजें हैं, तो इट इज अफेक्टिंग आवर बॉडी। सो दिस इज द exactly. रीजन। That is the reason they and also they give a lot of hormones to the cow. यस यू आर राइट। वो तो दूध में आ जाएगा, and the children are taking and they're getting big, heavy, and all kind of things are happening to the young girls. They're डेफिनेटली डेफिनेटली maturing very दिस इज, early. That's the वो जो reason. एक जमाना था ना, जब दूध के एक बेनिफिट थे वो खत्म हो गए हैं हमारी लाइफ में। तो पहले तो इंडिया में तो दूध, हर चीज में दूध पियो जी, दूध पियो जी, दूध रात को सोने वक्त दूध पियो, सुबह उठ के दूध पर पियो. उस टाइम दूध में तो प्योरिटी थी। हाँ, अपनी काव खुद अपने घर के पीछे होती थी ना. सबके पास अपनी काव Everybody रहती get the थी। cow. They have their own cow. Like chickens थे, अपना अंडे भी organic अंडे you could get from the chickens. Now everything is commercialized or different. अच्छा, अभी शैली जी हैं, वो पूछ रहे हैं, and आशा जी भी यही कह रही हैं. She's making a suggestion that she said she drinks more lemon tea and stopped having milk products. So I'm not taking too much of almond milk to be very honest. पर मैं लेके पीती हूँ तो सिर्फ उसका ही पीती हूँ. And शैली जी पूछ रही हैं कि what are the benefits of oat milk? Oat milk, or actually oat is a complex flour, or it is too good for women health, too good for bones. अच्छा, Even oats, especially oats. I wasn't breakfast के लिए, aware. मैं अपने breakfast के लिए डाइट में ओट्स बहुत डालती थी, पहले बहुत ज्यादा डाइट में ओट्स डालती थी। आप मानोगे आज से 5-6 साल पहले जो मेरे क्लाइंट थे ना, उनके मैं जो डालती थी ना, दे एक्सेप्टेड वेरी हैप्पीली। उनको लगता था कि डाइटिशियन ने बोला है तो राइट है। अभी थोड़े से लोगों के अपने भी दिमाग चलाते हैं, तो आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। पहले बस वो मेरे हिसाब से चलते थे। एक मुझे 60+ क्लाइंट का मैसेज आया, मोनिका आई हैड प्रॉब्लम इन माय नीज सिंस लॉन्ग, आई डोंट नो हाउ योर डाइट इज हेल्पिंग मी, आई एम नॉट फीलिंग एनी ऑफ पेन इन माय नीज। मैं वॉक का मेरा मूवमेंट बढ़ गया है, मेरे राउंड्स बढ़ गए, एंड मैं जब वापस आती हूँ आई एम ऑलवेज विदाउट पेन। और पहले मैं आती थी, मुझे मुझे इन्फ्लामेशन रहती थी, और मुझे लगता था कि आने वाले टाइम में मुझे नी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। और ये मैसेज आज भी मेरे पास लिखा हुआ है, एंड इट रियली मेक्स माई डे कि मैं ओट डालती हूँ। रीजन कि समटाइम्स होता है पीपल आर टू बिजी इन द मॉर्निंग, उनके पास टाइम नहीं होता टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। तो मैं थोड़ा ओट्स स्मूदी, ओट्स का ये ओट्स चिल्ला, ये सब डालती रहती थी। तो उनकी डाइट में शायद नॉर्मली ज्यादा चला गया, एंड शी रियली थॉट द बेनिफिट ऑफ इट। ओके. सो that's no, the हाँ, oats की तो वो कहते हैं ना, सुबह सीरियल बना लो उसका, you can have, I mean बहुत oats. अच्छा है, पर किसी को पता नहीं कि ओट्स, एंड देन एनीवन टेल मी कि ओट्स होता क्या है। मुझे नहीं लगता किसी को पता है व्हाट इज ओट्स। आप बताओ. ओट्स का नाम आपने आज से 15-20 साल पहले तो सुना नहीं होगा। आई थिंक 20-25 साल पहले तो ज्यादा नहीं तो बोलता था ओट्स, ओट्स कुछ भी नहीं था। ओट्स जहां पर भी व्हीट होती है ना, उसके Wheat. साथ जो व्हीट है ना, दैट इज ओट्स। So why is it become so popular now? Because of the इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ न्यूयॉर्क, आपके यूएस के लोगों की वजह से हुई है। इंडिया में तो इसे व्हीट बोलकर छांट देते थे, फेंक देते थे। इसके अभी इंडिया, पहले तो ओट्स का जो पैकेट भी आता था ब्लू कलर का क्वैकर ओट्स, से बाहर से ही आता था। इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं थी। ये अब थोड़े सालों में इंडिया के भी सफोला ओट्स ये सब बनने शुरू हो गए, पहले इंडिया में नहीं था ओट्स। यहाँ पे तो ओट मिल्क बहुत मैंने अभी देखना शुरू किया है, सब जगह जगह में मिल रहा है ओट मिल्क, उसके साथ में अगर कोकोनट. ओट में आई मस्ट से ओट्स मिल्क मिल रहा है, तो उसके जिससे भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और आने वाले टाइम में वो ऑपरेशन सोच रहा है, वेट फॉर 6 months, हैव ओट्स मिल्क एंड सी द डिफरेंस।
अच्छा स्पेशली इन अ कंट्री लाइक यूएस और कनाडा जहाँ प्योर चीजें मिलती हैं, एंड यूके। इंडिया में आई कांट टेल, मुझे इंडिया में अडल्ट्रेशन से बहुत डर लगता है। यहाँ तो कोई भी चीज में क्या डाल दें यू नेवर नो। अच्छा अच्छा। सर्फ डाल दिया या क्या डाल दिया, जैसे दूध का आता हाँ, रहता है। अभी अभी शाली जी लिख रहे हैं that she uses oat milk. ओके, ओट मिल्क भी मैंने ट्राई किया हुआ है। देखो ना, पहले तो थोड़ा टेस्ट डिफरेंट लगता है ना हर एक चीज़ का। ओट हाँ मिल्क, बिल्कुल आलमंड बिल्कुल। मिल्क, सोया मिल्क का भी पहले मुझे थोड़ा अजीब लगता है। देन व्हाट आई डू इज आई, if I'm drinking almond milk cereal में, then it's okay. But sometimes I just drink like a milk. थोड़ा मैं ना उसमें I put a little bit of which is not a, I don't know if it's a good thing or not. Put a little, ये जो होता है ना कॉफ़ी होती है, little bit, just a half a spoon of coffee, and then I mix it and then drink it. तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, you know, taste is थोड़ा different. डिफरेंट। Yeah, just like आप plain. मुझे आपका ये अच्छा लग रहा है अप्रोच कि आपने कैसे डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़े हैं और किस तरह से आपने एक्सेप्ट करा है। ये इस तरह से ही छोड़ी जाती है कोई भी चीज, एक्सेप्ट द टेस्ट। Yeah, in fact that because मेरा तो I was going to I was having problem with mammograms because of the soy milk. तो इसका क्या, मुझे उन्होंने पूछा भी व्हाट काइंड ऑफ डाइट आर यू टेकिंग, दे सेंड मी टू द डाइटिशियन स्पेशली, इसी करके भी तुम क्या कौन सा मिल्क पीते हो क्या कर। वन दे फाउंड आउट दैट आई एम टेकिंग सोया मिल्क एवरी डे, टोफू खा रही हूँ एवरी डे, तो उससे उससे ये प्रॉब्लम होगी। एक्सेस ऑफ सोया इट इज नॉट। एग्जैक्टली। सो दैट इज सूट सम पीपल, पर हर एक चीज़ में थोड़ा मॉडरेशन करो तो ठीक है। यू नो, इट्स नॉट लाइक रोज़ खा रहे हो ये खा रहे हो। पर पनीर इज लाइक, मैं कहा चलो पनीर जैसा है वो भी, उसमें भी प्रोटीन होती है तो इसको अच्छा, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसका, so I started using quite a lot, you know, but then all of a sudden I stopped it. I said no, that when once I stopped, so everything went back to normal. The mammogram was back to normal. Yeah, it was fine. So I guess she says it feels creamy and creamy than almond milk. It feels rich and creamy than the almond milk. Almond milk थोड़ा पतला पतला सा होता है, ओट मिल्क थोड़ा थोड़ा सा उसमें ना क्रिस्प consist. होता है। ओट्स में स्टार्च होता है ना, ओट्स का जो स्टार्च है दैट इज वेरी हेल्दी स्टार्च। I'm gonna try, I'm gonna bring that. एक एक भी मिलता है, एक जगह, एक वन बिग स्टोर, वेरी बिग स्टोर लाइक कॉस्को, उसका नाम बीजेज है। उनका सामान थोड़ा डिफरेंट है कॉस्को से, तो मैं बीजेज में एक मिलता है खलीफा, इट्स द नेम ऑफ द कंपनी, खलीफा, दैट हैज कोकोनट एंड आलमंड मिक्स्ड, कोकोनट मिल्क एंड आलमंड मिल्क मिक्स का उनकी बॉटल मिलती है। दोनों बहुत अच्छे हैं। ये दोनों बहुत आपको जिसने भी वेरी गुड अर्थराइटिस का क्वेश्चन पूछा था, यू कैन टेल देम कोकोनट एंड आलमंड मिल्क बोथ आर टू गुड फॉर बोथ। फॉर बोथ, फॉर आर्थराइटिस, राइट? वो बहुत अच्छा है। आर्थराइटिस कोकोनट की, में वैसे भी कोकोनट फुल ऑफ कैल्शियम है। आई नो, या ओट इज तो ऑल्सो वेरी गुड। तो वही मैं कह रही हूँ ना, अभी जब whenever I go to बीजेस, तो उनका उधर ही मिलता है, बाकी मैंने कहीं बहुत कम देखा है। तो वहाँ से उनके दो दो इतने बड़े बड़े दो कट्ठे, यू नो, यू गेट टू पैकेट्स टुगेदर, सो आई यूज दैट एंड आई लाइक इट, आई लाइक दैट कॉम्बिनेशन, बिकॉज मैंने कहा इसमें कुछ रीज़न ही है, उन्होंने मिक्स किया हुआ है, there's a reason. नॉर्मली यू ओनली गेट वन, इसका भी ले लो या उसका ले लो, तो इसमें दोनों का मिक्सड है। So I get that, but I want to try oat milk. मैंने try किया हुआ है, I've tried oat milk also. आशा जी कहते हैं she drinks coconut milk, and Shali ji likes oat milk. It's more rich. Oat milk, almond milk थोड़ा पतला पतला होता है ना, oat milk is little, has little bit थोड़ा thick लगता है। Now मैंने another question I have is now about the yogurt. Yogurt तो regular milk से ही बनता है ना? योगर्ट है। तो is that good or not? Because अगर milk हम नहीं डेफिनेटली पीते, इट इज गुड। योगर्ट के पीछे एक रीजन है कि इसमें इसका जो बैक्टीरिया है इट इज गुड फॉर आवर इंटेस्टाइन। हाँ, प्रोबायोटिक होता, बायोटिक जो होता है। बायोटिक है। तो योगर्ट से जो बेनिफिट है वो दूध से कहीं ज्यादा है। हम्म। दूध में वो बेनिफिट ही नहीं है जो योगर्ट में है। एक तो इसका जो ये योगर्ट के हम अच्छी स्मूदीज बना लो, इट इज गुड फॉर योर बॉडी। अदर थिंग्स इज दैट कैल्शियम इसमें भी है। हमारी बॉडी के लिए जो फ्रेशनेस है मौसम के हिसाब से, योगर्ट तीन, आज तो मैं योगर्ट की भी तीन चीजें बताती हूँ। योगर्ट में और लस्सी में बहुत फर्क होता है छाछ में। जो छाछ होती है ना वो विटामिन बी होती है, जो योगर्ट होता है वो प्रोटीन होता है। हाँ, तो जैसे वो मिक्स होती है तो उसी टाइम उसका प्रोटीन खत्म होके इट टर्न्स इनटू विटामिन बी। ओके। तो उसके बेनिफिट भी बॉडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं।
Yeah, Asha ji कह रही है, she uses coconut oil and drinks fresh coconut milk. Now fresh तो यही होता है जो कोकोनट का ड्रिंक जो मिलता है जो वो मिलता है, जो पीना कलाडा जिसकी बन जाती है। उसकी बन जाती है, यस। तो वो कहते हैं कि शी मेक्स फ्रेश कोकोनट मिल्क। वो तो फिर नारियल लेकर तो उसको जो दो पीना होता है वही होगा ना। दैट्स मिल्क इज डिफरेंट, आई गेस यू हैव टू मिक्स इट, आई डोंट नो हाउ दैट इज, बट यू कैन आल्सो शी नहीं, सेड ये योगर्ट सब विद हार्ड आलमंड मिल्क। रहता है, बन जाता है। कोकोनट मिल्क से भी बन सकता है। गोट मिल्क का तो मैंने देखा हुआ योगर्ट, आई सीन इन द स्टोर्स, मिलता है, गोट मिल्क का मिलता है। गोट मिल्क इज ऑल्सो अवेलेबल इन सम प्लेसेस, मिलता है, यू कैन ड्रिंक दैट टू, बट हाँ, गोट मिल्क मिलता है। गोट मिल्क डाइजेस्ट नहीं जल्दी होता, गोट नो मिल्क का टेस्ट इज, टेस्ट भी कोई खास अच्छा नहीं होता। मैंने ट्राई किया हुआ है। पर गोट मिल्क बहुत गर्म होता है। जो अर्थराइटिस की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको दिया जाए। अच्छा। हाँ, ये अच्छा रहता है बोन्स के लिए, नीज के लिए। क्योंकि होता क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ठंडी चीजें, जिनको बोन्स में पेन हो रही है, नीज में पेन हो रही है, उसको ठंडी चीजें अच्छी नहीं लगती, उसके बॉडी पर ज्यादा वो अगर रोज छाछ पी रहा है, ठंडी चीजें पी रहा है, उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये गोट मिल्क उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, ये बॉडी के लिए थोड़ी इन्फ्लामेशन कम करता है, एंड इट्स गुड फॉर देम, गर्मी देता है। सीड इन सम स्टोर्स गोट मिल्क मिलता है, गोट चीज मिलता है, गोट मिल्क योगर्ट, ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर देयर इन इट्स ट्रेडर जोस। मिलता है अब हर जब यहाँ पर इंडिया में भी मिलता है, जब जरूरत पड़ती है यहाँ पर ये सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। सुपर मार्केट्स में वो इनके बोतल्स वगैरह होती है। बट वी आर नॉट श्योर हाउ फ्रेश इट इज। दैट्स दैट वी डोंट नो, वो तो क्योंकि बॉटल। ये इसकी कंजप्शन इतनी ज्यादा नहीं है, इस वजह से वी आर नॉट अवेयर कि ये कितना फ्रेश है। वो तो है, दैट्स ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। एंड आशा जी बनाती हैं, शी मेक्स हरसेल्फ, दैट्स वेरी वेरी गुड। आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क तो मैं ट्राई करूंगी खुद ही, फ्रेश जब चाहिए हो तो उसको सोक कर लो, घर में बादाम तो होते हैं, सोक करके देन हाँ हाँ, ब्लेंडर एंड दैट्स इट, दूध बन गया। Because इजी देखो, होता है इसका बनाने का, कोई वो नहीं है, बस ये है कि अच्छे से फिर उसे छानना भी होता है। हाँ वो तो फिर दूध उसके अंदर हाँ, हो। फिर इसे आप छान लो और आपके लिए वो बन गया है। पर वो आपको मैं चीज बताऊं, ये उतना बनता है जितने में आपके बस चाय बन जाए। अच्छा तो फिर इजी टू गेट द बॉटल, बॉटल ले आओ। वो तो फिर ये है कि ये खाली ये एक ब्रांड। आपकी चाय के हिसाब से बन जाएगा। मेरे को तो ये एक कंपनी, मतलब कंपनी नहीं, उनके 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 बहुत प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, खलीफा, CALI, अच्छा उनका उनका ही मैं लेती हूँ, दूध आलमंड मिल्क सब कुछ दे हैव। अच्छा। उनका कोकोनट भी होता है, कोकोनट का भी, सो आई बाय दैट वन। इफ आई गो टू दैट प्लेस कॉल्ड बीचेस, दे हैव कोकोनट का और आलमंड का मिक्स मिलता है, बट कॉस्को में भी नहीं मिलता वो। हाँ जी, वेलकम परमिंदर कौर जी, हाउ आर यू? Welcome, and Asha ji giving very good suggestions. I really like that. She drinks all, she eats all healthy, very very healthy food. अच्छा, अच्छा, ये जो है शाली जी पूछ रही है कि आप अगर आलमंड मिल्क घर में बनाएं, राइट, जैसे सपोजिंग रात रात को आपने सोक किया तो सुबह बना लिया, तो ये कितनी देर तक फ्रेश रहता है फ्रिज में? देखो, ये यहाँ पर पॉइंट आ गया कि होममेड चीज और मार्केट की चीज का फर्क आप इसी से लगा लोगे। ये आपका मुश्किल से इसमें स्मेल ना आए, ये वेदर टू वेदर भी है। ये 1 डे से ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। हाँ, आई थिंक वन सो डे से बिकॉज ज्यादा नहीं, ये इसमें इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज आई हैव आपको नोटिस्ड। या आशा जी कह रही हैं इट्स गुड फॉर 3 डेज। अच्छा ऐसे है, हाँ 3 डेज तो ठीक है, क्योंकि रात को आपने कहते हैं 8, वो कह रहे हैं कि 8 आलमंड को सोक करो, 8, एंड उसको इन द रात को सोक करके अगले दिन उसको पील करके एंड 1 कप, एक कप पानी का लो एंड पुट इन द ग्राइंडर। पर अगर आपने 1 कप का बनाया 8 आलमंड के साथ हो तो उसी वक्त ही आप यूज़ कर लोगे ना, 1 कप तो यूज़ हो हाँ ही हाँ, जाता है। उसे उसको रखने संभालने की जरूरत नहीं है उसको फिर। उसको रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू मेकिंग इट फ्रेश एंड देन यू ड्रिंकिंग इट। यही ना, अगर रोज ऐसे अगर पीना है, रात को रोज सोक कर दो 1 कप, और अपने अपने लिए सुबह बना के उसको पी सकते हो, और शाम को जैसे आपकी मर्जी, whatever you want, so it's good for 3 days, but I don't think so you're going to keep that cup
थोड़ा सा No, पी के मतलब there is no use, and I do believe आई थिंक पानी में एक बार चीज चली जाए तो उसके बाद मतलब देखा जाए तो उसका स्टेलिंग पॉइंट वहीं से शुरू हो जाता है। बादाम उतनी देर ही फ्रेश है टिल द टाइम वो पानी में निकले। एक तो वो पहले पूरे 8 आवर्स पहले वो ओवरनाइट सोक रहेंगे पानी में, फिर हम वो दूध निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसे 2 से 3 दिन रखेंगे। आई डोंट एग्री विद दिस। बेटर है ताजा बनाओ ताजा पियो। हमारी बॉडी पर फ्रेश फूड का बहुत ही अगर डीप इफेक्ट। अगर एक कप बना ही रहे हो तो एक कप तो पिए पिए जाता है ना। हाँ पिया जाता है, 1 कप पीजिए, उसकी वन दो, कप। उसकी चाय बना लो, कुछ बना लो। नहीं नहीं, वही मैं कह रही हूँ, आई वांट टू ट्राई इट आल्सो, लेट मी सी हाउ इट इज। बट ओट्स तो नहीं बन सकते ना, कि ओट क्या भी कर सकते हो, ओट को भी रात को सोक कर सकते हो, बना सकते हो ओट मिल्क। ओट्स का मुझे समझ नहीं आया कि कैसे दूध बनाते हैं। आई थिंक इट इज समथिंग वेरी मशीन का ही प्रोसेस हो सकता है। वो मुझे लगता है हमारी मशीन्स में उतना अच्छा, मिक्सी में उतना अच्छा नहीं बन सकता। आई थिंक सो पर टू। आई डू बिलीव आमंड मिल्क इज गुड। आमंड मिल्क के बेनिफिट्स आपको 2 तरह के मिल रहे हैं। एक तो आमंड्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करते हैं, और इसका दूध आप पी रहे हो तो आप इनडायरेक्टली आप अपनी बॉडी पे सुबह से ही हेल्दी फूड में डाल दो। तो इसको 1 कप इन डे पी सकते हैं आराम से, नो नो वन नो। कप है, आपको इससे प्रोटीन मिल गया। सुबह उठते ही अगर आप सुबह उठकर पी रहे हो, प्रोटीन मिल रहा है आपको, आपको कोलेस्ट्रॉल सुबह बॉडी एकदम सिस्टम में आ रही है, तो प्रोटीन से वैसे भी डायबिटीज नॉर्मल होती है। ऑल टुगेदर यू आर डूइंग ग्रेट फॉर योर। दैट्स गुड। और मुझे लगता है ज्यादा चीजों में ना भी इन्वॉल्व होया हुआ जाए तो बेटर है। ओट्स का दूध लाने से अच्छा ओट्स मिलते हैं, उसे दूध में डाल दो, वैसे ही पी लो। आमंड मिल्क आपने निकाला ही हुआ है, उसमें ओट्स डालो, थोड़ी सी ब्लूबेरीज ये सब डालो, फ्रूट डालो, एंड हैव अ नाइस ब्रेकफास्ट। सीरियल खा दो। जैसे माय माय हाँ ग्रैंड किड्स, सीरियल का। मेरे ग्रैंड किड्स हैं, वो सारे आलमंड मिल्क पीते हैं, दे डोंट टेक रेगुलर मिल्क। तो वो तो सीरियल के साथ, सीरियल में डाल के, दे लव द सीरियल विद आई आलमंड। डू बिलीव कि जो अभी आने वाली जनरेशन है ना, उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने हैं। सब छोड़ दिया है। मेरे मेरे ग्रैंड किड्स, मेरी बेटी, उसके तीन तीन है, 3 किड्स। तो अभी बड़ी वाली जो है 12 years old। तो जब 2 साल की थी, एक या 2 साल की, तब कब बंद करते, कहते नॉट ए गुड, रेगुलर मिल्क इज हाँ नॉट। डेयरी प्रोडक्ट्स एंड शुगर, ये आने वाली जो जितनी भी स्मार्ट जनरेशन है ना, ये दोनों चीजें छोड़ती हुई जा रही है। मेरे माई ग्रैंड किड्स, उन्होंने कभी लाइफ में अभी तक ये कोक वगैरह कभी नहीं पिया। दे डोंट इवन नो द टेस्ट ऑफ। हाँ ये हैबिट भी तो हम ही डालते हैं। हाँ, तो शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। दे ओनली ड्रिंक मिल्क, वाटर पीते हैं, या ये दूध, ये तो आलमंड मिल्क कभी पी लिया, योगर्ट। बट दे ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। शी डजंट बिलीव इन टू मेनी जूसेस, ये ऑरेंज जूस वगैरह वो भी बहुत कम देती है। ज़्यादातर उनको पानी देती है, मोस्टली लॉट ऑफ वाटर। दे ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड देन आलमंड मिल्क सीरियल में डाल के, और आलमंड मिल्क पीना हो तो आलमंड मिल्क देती है। शी डजंट गिव एनी सोडाज, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल। ये सो सोडा तो देने वाली चीज नहीं है। आई डोंट थिंक सोडा की आदत भी डालने वाली चीज है। वेरी फुल ऑफ शुगर। तो वैसे फुल तो ऑफ शुगर, मेरे बहुत माय फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। she has not given them soda in their life, they have not tasted। मैं आपको आपको सोडा से एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। व्हाइल आई गॉट मैरिड इन 98, तो मैं नैरोबी पहुंची, इंडिया से बाहर केन्या में। तो आई एम एडिक्टेड टू टी। हमारे तो यहाँ सिस्टम है कि हम बाहर से आएंगे तो हमने चाय पीनी है। आई नो। और लौट और कहाँ मैं इंडिया से बाहर गई हूँ, सुबह की निकली हुई हूँ, तो किसी ने पार्टी रखी है हमारी नई नई शादी की, जिसे पूछो सोडा, जिसे पूछो मोनिका सोडा। मैं अपने मन में, चलो मैंने सोचा अब इसके बाद चाय ले आएंगे। कोई चाय नहीं पूछता है। फिर बाद में मैंने नोटिस करा वेयर एवर आई एम गोइंग फॉर डिनर, लोग इतनी बड़ी सोडा की बोतल एट द मोमेंट जब आप डिनर कर रहे होते हैं दे कीप ऑन द डाइनिंग टेबल। People are were so, I am talking about 25 years back. People were so used to of soda at that time. उनका खाना हजम नहीं होता था जब तक साथ में सोडा नहीं। वो तो अभी भी कई लोग पीते हैं जिंजर एल, ऑल दिस थिंग्स। बहुत से लोग हैं, बहुत से। जिंजर एल तो फिर भी एक पॉइंट पर अच्छी है, पर ये ब्रोथ वगैरह आई डोंट थिंक सो कि ये अभी अभी शायद अब लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं। हाँ, 25 साल अब पहले और अभी में बहुत फर्क है। फर्क पड़ गया। तो आई डोंट टेक इट ऑल, आई डोंट ड्रिंक आई वन, डोंट मे मी बी। टू, मुझे भी ऐसे यूज नहीं लगता है इसको लाइक आई यूज्ड फ्रिज टू में लाइक, रखने का भी। जिंजर एल पहले। तो मैं अगर साल में एक बार थोड़ा सा ले लूँ तो ले लूँ, साल में
but I don't take any sodas at all. मेरे घर में कोई सोडाज अलाउड नहीं है, I don't take, हम पीते ही No, नहीं no, है। आप नहीं, ये वैसे भी it is not a drink to take. नो, मैं मेरे घर में मैंने किटी करी थी एक बारी लंच के लिए, तो लॉट ऑफ वाटर, यू नो, पेलेग्रीनो एंड ऑल दिस अदर स्टफ, तो कहती नहीं मुझे तो कोक चाहिए। मैंने कहा भी देखो, डोंट माइंड, मैं तो घर में कोक रखती नहीं हूँ। टी बड़ी सोडा। सो नाउ व्हेन दैट ग्रुप कम्स फॉर लंच, कभी साल में एक बारी उनकी बारी आती है ग्रुप की, मेरे घर में किटी मेरे घर में होती है, उनके लिए मैं एक बॉटल के कोक का ले आती हूँ। उसके बाद में बच With गई। your experience, you learned, हाँ. Yeah, so I don't drink, I don't like it anymore. But the पहले that time था, इंडिया में भी सब कोक पीना जी, कोक, पेप्सी कोला, कोक कितना, थम्स अप, पता नहीं क्या क्या था। और कैसी एड बनती थी कि ऐड किसी का बनती ना थी। भी मन हो रहा हो Yes. पीने जाए. ये जो था, क्या कहते हैं, ये माइकल जैक्सन, ये तो ऐड कर रहा हाँ. था, पेप्सी की ऐड कर रहा था, तो उसके सारे बाल but something, the ad got, something happened, and he got burnt on his hair and all that, got burnt badly. So anyway, that was an ad, he was commercial कर रहा है, but I'm just saying, और उनके अपने घर में तो आती भी नहीं होगी. हाँ, तो अब उनकी कंजम्पशन कोक वगैरह की कम ही हो गई। अब अदर थिंग्स हैव कम अप, गेटोरेड एंड ऑल दैट, लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैव कम अप। दीज आर फॉर पीपल हु आर एथलेटिक, जिम में जाते हैं, देन दे कम एंड ड्रिंक गेटोरेड, आजकल वो भी पीते हैं लोग। इफ यू नॉट फीलिंग वेल, बीमार हो गए, तो गेटोरेड पियो, इट हैज ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एवरीथिंग इन दैट। Electrolytes are too good. Low energy हो, कुछ हो, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी. We need electrolytes. तो कोकोनट का पानी पियो, ये बहुत अच्छा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैज दैट। इनकी यहाँ पे ड्रिंक कह रहा हूँ, इंडिया में शायद नहीं होएगी, इट्स कॉल्ड गेटोरेड, Okay. उसमें होता इंडिया है। में इलेक्ट्रोल जूस मिलता है ना. हाँ, दैट्स गुड। यहाँ पे भी यार कॉस्को में पाउडर मिलता है, पैकेट मैंने लेकर आई हूँ। इफ यू ड्रिंक, पुट इन द रेगुलर वाटर, इट हैज ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो पानी में पी लो उसको, दैट्स वेरी वेरी गुड एक्चुअली। सो बिकॉज हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है इस चीज़ों की, लाइक वी नीड ऑल दिस हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं. Whenever there is a headache, even that time one should take a electrolytes juice. थिंग्स। क्योंकि उस टाइम भी इलेक्ट्रोलाइट्स से नीचे आए होते हैं. दिस इज द रीजन हमारा हेडेक हो रहा था. Yeah, that's the thing. So I will, yeah, she puts dates and bananas and blueberries in the oatmeal. Yeah, that's why when you make a cereal, you dates डाल दो, थोड़े nuts डाल दो, blueberries डाल दो, have a variety of different fruits on the in the Yes. cereal. It's very healthy. That's what my grandkids do that. My daughter does that for them. I also take it sometime. Blueberries are very good. Strawberries are very good. Anything berries, diabetes के लिए तो बहुत अच्छी चीज होती है। Blueberries, strawberries, Berries are good for any diabetic person. any person. या, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो मोनिका जी, आते रहो ना हमारे प्रोग्राम में, तो आप बताते रहो क्या क्या टिप ऑफ द डे। आप एक टिप गाओ सबको जो हेल्थ के लिए अच्छी है। टिप ऑफ द डे बस ये है कि स्टार्ट डूइंग योगा. एंड योगा के लिए भी टाइम नहीं है. 5 से 10 मिनट बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज. दैट्स इट. It is the full day workout for your all the energy because you are getting the oxygen as soon you wake up. And ये this I अच्छा, ये सुबह उठ के करो योगा। सुबह उठ के just live 5 to 10 minutes. अब मैं सब लोग बोलते हैं ना योगा टाइम नहीं है, बहुत लंबे मुझे भागना है. 5 मिनट भी if you are doing something like that, breathing exercise is something like that. It is almost same like running. हम्म, आप जितना उसका थोड़ा बढ़ाते जाओगे, जितना धीरे धीरे धीरे, believe me, and if you are closing your eyes and you are doing this, believe me, you feel like that you are running in the park. वाह, या So योगा this is वेरी वेरी इफेक्टिव। यहाँ पे because full day yoga, everyone doesn't have this much time. क्योंकि योगा के लिए प्रॉपर सिटिंग और ये सब होने के लिए सबके पास उतना टाइम नहीं रहता. बट आई मस्ट से इतना टाइम तो जरूर रखो कि आप चाहे बेड से उठते ही कर लो 5-10 मिनट. जस्ट मेक दिस इज द टिप ऑफ द डे. इससे आपके फेस ग्लो सब है. और हाँ, सुबह सुबह पानी तो सबने पीना ही. हाँ, पानी तो पीना, दैट्स व्हाट आई वाज गोना से, टिप ऑफ द डे, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आई मीन नॉट टू मच, वो भी बहुत नहीं, 7-8 ग्लास तो पीने चाहिए। इसके लिए पीछे भी ना एक मैं ये बोलना चाहती थी, पर लॉट ऑफ वाटर के पीछे भी एक नई थ्योरी आती है. देयर इज अनदर थ्योरी. आई रियली वांट टू शेयर इट नेक्स्ट टाइम. पहले बोलते थे ड्रिंक लॉट ऑफ द वाटर. आपको भूख है, प्यास है या नहीं है, इसे पियो.
अब थोड़े टाइम से लोग बोल रहे हैं कि अगर बॉडी जब बाकी चीजों के लिए अपने आप अलार्म देती है तो जब पानी के लिए नहीं देती, वाई ऑल द डाइटिशियंस दे आर फोर्सिंग अस टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। Yeah. इस थ्योरी का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। सो इसके पीछे फिर मुझे एक दो लोगों ने बोला कि मुझे तो प्यास नहीं लगती। मैंने बोला फिर भी ट्राई ड्रिंकिंग वाटर, थोड़ा बहुत पियो। रीजन है कि वी हैव टू गिव क्लींजिंग, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। बिलीव मी, एक लेडी ने शुरू करा, शी सेड मोनिका जी जब से पानी पीना शुरू करा तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है। मुझे ज्यादा प्यास लगनी शुरू शुरू होती है, मैं मुझे सारा टाइम आई ऑल द डे आई फील थर्स्टी। इसके पीछे आई मस्ट से एवरीवन शुड गूगल द रीजन बिहाइंड इट। मैंने भी किया। हमारी बॉडी का जिस चीज का सिस्टम शुरू हो जाता है ना, आवर बॉडी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। जब हम पानी ज्यादा पीने शुरू होते हैं हमारी बॉडी पानी ज्यादा मांगती है। जब हम खाने के लिए, जैसे बहुत से लोग होते हैं जब सुबह उठ के नाश्ता नहीं करते, वो बोलते हैं मैं भूख ही नहीं लगती, बट एज सून दे विल हैव देयर ब्रेकफास्ट दे विल हैव ऑल द हंगर फॉर लंच एज वेल। क्योंकि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो वैसे वर्क करती जैसे हम उसे करवाते हैं। ये तो है। तो ये वाटर के बारे में मस्ट गूगल। मैं ये इसके लिए इवन आई फाउंड आउट द रीजन और मुझे बहुत अच्छा लगा था नहीं, कि that's good, हमें but अरे also excessive is not good too. Too much भी करना पानी बहुत ठीक नहीं है. So I would say suggestion 7 to 8 glass तो पी सकते हैं 7 आराम. to 8 and drink water till evening 6 p.m. to 7 p.m. क्योंकि हमारी बॉडी को रात के टाइम we have to bring it at the rest mode। हम Right. ज्यादा पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी को उतना ही काम करना पड़ता है। उतनी बार you have to pass the urine whole night, so Right. your body is not resting, you have to Right. give rest to your body। Right. That is true. बिल्कुल ठीक कहा आपने. तो thank you so much for a wonderful session. Yeah, the way you train your body, that's the way it is. रात को तो खैर कहते हैं ना थोड़ा after 6, 7 o'clock, 8 o'clock के बाद थोड़ा कम पीना. पानी Little less. Yeah, that is the thing. So thank you so much everyone who joined. A lot of people have joined me. यहाँ पे कितने सारे, I want to thank all of you for joining. And this Friday we're going to have a session with Narinder ji, and next week next Wednesday we have excuse me, we have a singer coming from London, England. Oh wow, that's good। Ghazalein gaayegi wo. And so we're trying to get somebody from India too. In 2 weeks maybe he's going to come. He's going to let me know. And a couple of people are coming from India as well. So thank you so much Monica ji for coming. And abhi fir aana, I'm अच्छा सा topic लेके, we always have good topics. And friends are watching, they like to listen to all these things because आप इतने अच्छे हो and you explain very well. So I want to thank everyone. Have a wonderful day. And देखो मैंने कोई photo भी नहीं ली, I forgot. Sometimes and nowadays I get so busy that I forget to take any pictures. But anyway. So again, once again, have a wonderful day, everyone. And enjoy the day and thank you. Have a nice evening. Thank you so much, Monica, for coming. Thank you. Thanks everyone। Thank you. 1 minute.